السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانے پہلے جب ہمارے ملک میں میلوں تک پھیلے ہوئے ہرے بھرے گھنے جنگلوں کی افراد تھی، ان میں سے کچھ جنگل تو اتنے گھنے اور طویل و عریض تھے کہ ان کی تھا پانا ہی مشکل تھا۔ ان جنگلوں میں نہ صرف ہزارہ قسم کے پیڑ پودوں اور جڑی بوٹیوں کے خزانے چھپے ہوئے تھے، بلکہ سارے موسم بھی وہیں رہتے تھے۔ وہیں سے گرمی کی دھول بھری آندھیاں اٹھتیں، وہیں سے تھر تھراتی ٹھنڈی ہوائیں جاڑے کی آمد کا پیغام لاتیں، اور وہیں سے رم جھم برسنے والی برساتیں اور کالی کالی بدلیاں فضاؤں کو مہکاتیں۔ اس جنگل کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام تھا خیر پور۔ خیر پور میں سب طرح کا امن و امان تھا، نیکی اور سچائی کا بول بالا تھا، سب لوگ مل جل کر خوشی کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں حمیدہ بانو نام کی ایک ضعیف عورت رہتی تھی جو بہت ہی نیک شریف اور شیریں گفتار تھی۔ گاؤں کا ہر شخص اس کے اخلاق کا مداح تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حمیدہ بانو کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے ایک ہی بیٹا تھا حامد، وہ بھی بڑا نیک اور فرما بردار تھا۔ انہی کے پڑوس میں صابرہ نامی ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی، اس کا حال بھی کچھ حمیدہ بانو جیسا ہی تھا۔ اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا، 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ چاروں بیٹیوں کی شادی شوہر کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، چاروں دور دراز شہروں میں بیاہ کے گئی تھیں۔ صابرہ کی فطرت اپنے نام کے بالکل برعکس تھی، صبر و قناعت تو اس کے مزاج میں تھا ہی نہیں، اوپر سے زبان ایسی کڑوی کہ جیسے نیم چڑھا کریلا، مجال ہے جو کبھی منہ سے کوئی میٹھی بات نکل جائے۔ ہر ایک کی برائی کرنا، ہر چیز میں 100 عیب نکالنا تو اس کا روز کا معمول تھا۔ کوئی نیکی یا بھلائی کی بات بھی کرتا تو اس کے پیچھے پڑ جاتی اور بھلائی کرنے والے کو توبہ کرتے ہی بنتی۔ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، خاردار جھاڑی میں دامن الجھانا کسے اچھا لگتا ہے۔ صابرہ کی بہو نادرہ قریب کے چتر پور گاؤں کی کسان کی بیٹی تھی، خوبصورت اور سگڑ لڑکی تھی، لیکن صابرہ بیگم نے اس کی زندگی بھی عذاب بنا رکھی تھی۔ اس کے ہر کام میں 100 کیڑے نکالنا، ہر بات پہ تانے دینا اور بیٹے سے جھوٹی سچی شکایتیں کر کے ڈانٹ پڑوانا اس کا معمول تھا۔ حمیدہ بانو کو نادرہ پر بڑا ترس آتا تھا، پاس آ کر اپنا دل ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ حمیدہ بانو کو بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش تھی۔ باتوں باتوں میں نادرہ نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کی شادی کے لیے والدین فکر مند ہیں۔ حمیدہ بانو کی تو دلی مراد برائی نادرہ انہیں بہت پسند تھی۔ وہ نادرہ کے ساتھ اس کے گھر جا کر لڑکی دیکھ کر آئی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہو گیا۔ سائرہ حامد کی دلہن بن کر حمیدہ بیگم کے آنگن میں اتر آئی۔ سائرہ برسوں سے اپنی بہن سے اس کی ساس کے ظلم و زیادتی کے قصے سنتی آئی تھی۔ اس کے ذہن میں ساس ایک نہایت ہی خوفناک اور ظالم مخلوق تھی۔ اس نے شادی سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اپنی ساس کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھے گی۔ اول دن سے ہی اس نے حمیدہ بانو کے خلاف محاذ بنا لیا، اس کی ہر بات کو وہ الٹے معنی میں لیتی، اس کے پیار کو وہ اس کی نئی چال تعبیر کرتی اور کہتی، میں میٹھی چھری کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، انہیں ٹھیک کرنا تو مجھے خوب آتا ہے، میں نادرہ آپا نہیں ہوں کہ چپ چاپ سہ لوں، نہ کو چنے چبوا دوں گی۔ حمیدہ بانو بیچاری حیران اور پریشان رہ جاتی، کیا کروں کہ اس بے وقوف لڑکی کو عقل آ جائے؟ اور تو اور سائرہ نے ہر وقت ساس کی جھوٹی شکایتیں لگا لگا کر حامد جیسے فرما بردار بیٹے کو بھی ماں سے بدزن کر دیا تھا۔ وہ بھی اکثر بیوی کے کہے میں آ کر ماں کو کھری کوٹھی سنانے لگا تھا، اماں تمہیں ہو کیا گیا ہے، چین سے جینے دو گی یا نہیں؟ حمیدہ بانو بیچاری ہکا بکا رہ جاتی، چھپ چھپ کے آنسو بہاتی، لیکن بیٹے کو دعائیں ہی دیتی۔ زندگی بھر کی وہی کمائی تھا۔ اسی طرح سال بھر بیت گیا۔ سائرہ نے ایک گول مٹول تندرست بچے کو جنم دیا۔ حمیدہ بیگم نے جی جان سے بہو کی خدمت کی،
اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ پوتے کو دیکھ دیکھ کر پاری صدقے ہوتی رہتی۔ بیٹے کی ماں بن کر سائرہ کا تو دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، ہر وقت ساس پر چلاتی رہتی۔ حمیدہ بانو سارے گھر کا کام کرتی، بچے کو سنبھالتی۔ سائرہ کمرے میں پڑے پڑے حکم چلاتی، ذرا بچہ روتا تو میاں سے شکایت کر دیتی، تمہاری اماں سے تو ایک بچہ نہیں سنبھلتا، اتنا رلایا ہے آج میرے بیٹے کو۔ حامد کو تو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، بات بات پر ماں پر چلانے لگتا۔ حمیدہ بانو زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ ایک دن حمیدہ بانو کپڑے دھو رہی تھی، بچے کو وہ بہو کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ بہو کمرے میں لیٹی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ منا جو گھٹنوں چلنے لگا تھا، کمرے سے باہر نکل گیا اور دالان کی سیڑھی سے نیچے گر گیا۔ مننے کے رونے کی آواز سن کر حمیدہ بانو اور سائرہ دونوں دوڑی آئیں۔ مننے کے ماتھے پر سیڑھی کا کونا لگا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ حمیدہ بانو نے دوڑ کر مننے کو اٹھانا چاہا تو سائرہ نے دھکا دے کر انہیں گرا دیا اور واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ایک ذرا سا بچہ نہیں سنبھالا جاتا، دشمن ہے یہ تو میرے بچے کی، جان ہی لے کر چھوڑے گی۔ جو منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا۔ اسی وقت حامد گھر میں گھسا تھا۔ مننے کی خون میں تر پیشانی دیکھی اور بیوی کی چیخ و پکار سنی۔ مننے کا سر دھلایا، پٹی باندھی۔ حمیدہ بیگم فوراً کھتا لے کر آ گئیں۔ بیٹا یہ لگا دو، ابھی خون رک جائے گا۔ حامد نے جواب نہیں دیا۔ دونوں میاں بیوی بچے کو گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ معمولی سی چوٹ تھی، ڈاکٹر نے پٹی باندھ دی۔ حمیدہ بانو پریشان دروازے پر کھڑی تھی۔ سائرہ نے راستے بھر میاں کو ساس کے خلاف خوب بھڑکایا۔ انہیں آتا دیکھ کر حمیدہ بانو دوڑی آئی، بچے کو گود میں لینا چاہا تو سائرہ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ حامد بولا، اماں اب تو حد ہو چکی ہے، اب تمہارے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تم کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ سائرہ اور دونوں میاں بیوی نے حمیدہ بانو کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حمیدہ بانو کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ پڑوسیوں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ چپ چاپ اپنی گٹھری اٹھائی اور جنگل کے کنارے ایک بڑے سے برگد کے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور اللہ کو یاد کرنے لگی۔ ماں تھی، اپنی اولاد کو کسی بھی حال میں بد دعا تو نہیں دے سکتی تھی۔ حامد اور اس کی اولاد کو دعائیں دیں اور اپنے لیے بھی دعا مانگی، یا اللہ اس بڑھاپے میں مجھے ذلیل و خوار ہونے سے بچا۔ اب اسی جنگل میں تینوں موسم جاڑا، گرمی اور برسات بھی رہتے تھے۔ ان تینوں میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ہر ایک کا کہنا تھا کہ سب سے اچھا موسم اسی کا ہے اور لوگ اسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ چلو کسی انسان سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے جاڑا باہر نکلا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ایک ضعیف عورت بیٹھی ہے۔ سوچا کہ چلو اسی سے چل کر پوچھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، حمیدہ بانو کو ٹھنڈ لگنے لگی۔ اس نے اپنی چادر کو اچھی طرح اوڑھا۔ سامنے کیا دیکھتی ہے کہ ایک لمبا چوڑا سرخ سفید آدمی کھڑا ہے۔ اس نے سفید سمور کی لمبی سی ٹوپی پہن رکھی ہے، سفید بالوں والا کوٹ، سفید لمبی سی داڑھی جس میں برف کے باریک باریک ذرات اٹکے ہوئے تھے، پاؤں میں گرم موزے جوتے، ہاتھوں میں دستانے۔ اس نے ادب سے کہا، اماں سلام، آپ کیسی ہیں؟ حمیدہ بانو نے کانپتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، ہزاری عمر ہو۔ تم کون ہو؟ تمہارے آنے سے مجھے سردی کیوں لگنے لگی؟ اماں میرا نام جاڑا ہے، میں سردی کا موسم ہوں۔ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ جاڑا کیسا ہوتا ہے۔ جاڑے کے دور سے رکھنے سے حمیدہ بانو کی جان میں جان آئی۔ وہ خوش ہو کر بولیں، ارے بیٹا جاڑے کی کیا کہنے ہیں، جاڑا تو بہت ہی پیارا موسم ہوتا ہے، سال بھر جاڑے کا انتظار کرتے ہیں۔ جاڑا آتے ہی ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے، لوگ دھوپ سیکنے کے لیے گھروں سے باہر اور اپنی چھتوں پر نکل کر بیٹھتے ہیں۔ دھوپ سب کو پیاری لگتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دن گھڑی کی گھڑی میں گزر جاتے ہیں، لوگوں کو بور ہونے کا تو وقت ہی نہیں ملتا۔ لمبی لمبی راتوں میں آرام کا وقت بھی خوب ملتا ہے۔ رضائیوں اور لحافوں میں گھس کر میوے کھانے اور گرم گرم چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
सेहत भी अच्छी रहती है। इधर खाओ उधर हजम। खाने पीने का मज़ा तो बेटा जाड़े में ही आता है। दिन भर धूप खाओ, रात को अंगीठियों के पास बैठकर कहानियाँ सुनो। बेटा, जाड़े के क्या कहने हैं, जाड़े जैसा तो कोई मौसम है ही नहीं। जाड़ा अपनी इतनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया। इसे यकीन हो गया कि शर्त तो वही जीतेगा। इंसान सबसे ज़्यादा जाड़े के मौसम को ही पसंद करते हैं। जाड़े ने अशरफियों से भरी एक थैली हमीदा बानो को देते हुए कहा, अम्मा, तुमने तो दिल खुश कर दिया, लो ये तुम्हारा इनाम है। ये कहकर जाड़ा घने जंगल में गायब हो गया। अभी इसे गए थोड़ी ही देर हुई थी कि हल्के शरबती रंग के कपड़े पहने, बालों में बेले मोतिया के फूलों के गजरे सजाए, एक हाथ में पंखा हिलाती सांवली सलोनी सी एक जवान लड़की हमीदा बेगम की तरफ बढ़ी। इसका करीब आना था कि हमीदा बेगम को सख्त तपिश का एहसास हुआ। गर्म हवा का झोंका चेहरे को झुलसा गया, कपड़े पसीने में शराबोर होने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी तभी खुशमिजाजी बरकरार रखी। औरत ने कहा, अम्मा सलाम। हमीदा बेगम ने दुआ दी, जीती रहो बेटी, दूधो नहाओ पूतो फलो, क्या तुम गर्मी हो? गर्मी ने जवाब दिया, हाँ अम्मा मैं गर्मी हूँ, लेकिन आपने कैसे पहचाना? हमीदा बानो बोली, बेटा तुम्हारे आने से मुझे पसीना आने लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद गर्मी हो। गर्मी 2 कदम पीछे हट गई। माफ़ कीजिएगा अम्मा, मेरे आने से आपको तकलीफ़ हुई। मैं तो दरअसल ये पूछने आई थी कि गर्मी के बारे में आपका क्या ख्याल है, गर्मी का मौसम कैसा होता है? हमीदा बानो खुश दिली से बोली, नहीं नहीं बेटा, तकलीफ़ कैसी, तुम्हें देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। बेटा गर्मी के क्या कहने, इस मौसम की तो बात ही निराली है। गर्मी आई और मोटे मोटे कपड़ों का बोझ उतरा। हल्के हल्के रंगों के सूती कपड़े अपनी बहार दिखाने लगे। गुलाब, बेला, चमेली और मोतिया के फूल क्या खिले कि सारा चमन महक उठा। शाम हुई और लोगों ने अपने अपने आंगनों में छिड़काव किया और चारपाइयाँ डाली। सफ़ेद सफ़ेद चादरों के बिस्तर बिछाए गए। कोरे कोरे घड़े और सुराहियों का सूंधा सूंधा ठंडा पानी रूह को ताजगी देने लगा। शाम से ही घरों में लीमू और फालसे का शरबत बनने लगता है। तरबूज और खरबूजे की काशें काटकर ठंडी होने को रख दी जाती हैं और इनकी मिठास से तो होंठ चिपकने लगते हैं। बच्चे बर्फ़ के गोले, कुल्फ़ी के मज़े ले रहे हैं। खीरा, ककड़ी, दाल चावल, दही, हल्की फुल्की सब्जियाँ जिस्म को ठंडा भी रखती हैं और सेहतमंद भी होती हैं। दिन में 2-2 बार नहाओ, दिल साफ, बीमारियाँ दूर। चांदी रातों में छतों पर महफिलें सज रही हैं। बड़े बड़े दिन सारे काम निमट जाते हैं। हाथ पाँव में चुस्ती रहती है। पैसे वाले लोग पहाड़ों पर जाकर मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। गरीब मिट्टी के कोरे बर्तनों में ठंडक हासिल करते हैं। बेटा कहाँ तक गिनवाऊँ और कहाँ तक गर्मी के गुण गाऊँ? गर्मी अपनी इतनी तारीफ सुनकर बाग बाग हो गई। इसने हमीदा बानो को अशरफियों से भरी थैली देते हुए कहा, अम्मा तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी और मेरी ज़ात से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गर्मी भी जंगल में गायब हो गई तो हमीदा बानो ने इत्मीनान का सांस लिया। अभी वो अपनी थैलियां संभाल ही रही थी कि क्या देखती है कि सामने से एक हसीन और जमील दोशीज़ा इनकी तरफ बढ़ रही है। इसने धानी लिबास पहना हुआ था, लंबे लंबे स्याह बाल खुले हुए थे और इनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। सर पर फूलों का ताज सजा था। लंबी लंबी पलकों और खूबसूरत रुखसारों पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसके करीब आते ही हमीदा बानो को सूंधी मिट्टी की महक आई। इसने भी आकर इन्हें सलाम किया तो हमीदा बानो ने ढेर सी दुआएं देकर पूछा, बेटी मेरा ख्याल है कि तुम बरसात हो। बरसात ने इतरा कर अपनी लट पीछे की तो नन्ही नन्ही पानी की बूंदें हमीदा बानो के चेहरे को तरावट दे गईं। अम्मा आपने कैसे जाना कि मैं बरसात हूँ? हमीदा बानो ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए किसी तारुफ की ज़रूरत थोड़ी है। तुम्हारा खुदादाद हुस्न तो खुद मुँह से बोलता है। बरसात खुश हो गई। इसने पूछा, अम्मा मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ
کہ बरसात का मौसम आपको कैसा लगता है? हमीदा बानो आंखें टपटपा कर बोली, अरे बेटा, ये क्या सवाल पूछ लिया तुमने? भला कोई ऐसा जानदार भी है कि जिसे बरसात का मौसम ना भाता हो? बरसात की तो बात ही निराली है, नई जिंदगी देने वाला मौसम होता है। ये तो झुलसी गर्मी में बरसात की पहली बारिश क्या आती है कि मुर्दा तनों में जान पड़ जाती है। कल तक जहाँ उजाड़ ज़मीन पड़ी थी, देखते ही देखते सब्ज़े से ढक जाती है। पेड़ पौधे हरे पत्तों का लिबास पहनकर क्या बहार दिखाते हैं। खेतों में धान लहलहाने लगते हैं। आमों के पेड़ों पर कोयल की कूक और पपीहे की पीहू पीहू के नगमे कानों में रस घोलने लगते हैं। घरों में लड़कियां बालियां धानी चुनरियां रंगने लगती हैं। नई ब्याही दुल्हनें धानी चूड़ियों से अपनी कलाइयां सजाती हैं। झमाझम मींह बरस रहा है। घरों में पकौड़ियाँ और पकवान तले जा रहे हैं। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। बूढ़े दूर से ही नज़ारा करके खुश हो रहे हैं। बरसात आई और बागों में झूले पड़ गए। बरसात के गीत गाए जा रहे हैं और आमों की बहारें लुट रही हैं। आसमान पर काली बदलियां छाईं और लोग पिकनिक बनाने लगकर खड़े हुए। हद्दे नज़र तक हरियाली ही हरियाली, जिसे देखकर आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। बरसात के बारे में क्या पूछती हो बेटी? बरसात इंसान को अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी रहमत होती है। बरसात ना हो तो नदी नाले सूख जाएं, मवेशियों को चारा ना मिले, पंछी को दाना ना मिले, किसान की फसल ना उगे। तुम्हारे आने का तो घर घर में इंतज़ार होता है। शहरों और देहातों में इस्तकबाल किया जाता है। तुम्हें खुशामदीद कहने के लिए त्यौहार और जश्न मनाए जाते हैं। हमीदा बानो की ज़ुबान तो शिरीनी की कान बनी हुई थी और बरसात की खुशी का तो कोई पूछो ही ना। इसे यकीन हो गया था कि मुकाबला तो वही जीतेगी। इसने हमीदा बानो को अशरफियों से भरी थैली देते हुए कहा, अम्मा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी और तुमसे मिलने पाबंदी से हर साल आया करूंगी। ये कहकर बरसात भी जंगल की पहनाइयों में खो गई। शाम होने वाली थी। आसमान पर शफक फूल रही थी। जंगल भांत भांत की बोलियों से गूंज रहा था। हमीदा बानो ने अशरफियों की तीनों थैलियां संभाली, अपनी गठरी उठाई और घर की तरफ चल दी। अंधेरा फैलने से पहले उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। सायरा और हामिद बैठे प्लान बना रहे थे कि अम्मा के जाने से जो कोठरी खाली हुई है, इसका क्या इस्तेमाल करें। दस्तक की आवाज़ सुनकर सायरा ने दरवाज़ा खोला। सामने सास को देखकर तेवरियां चढ़ गईं। चिल्लाकर बोली, लो आ गईं, ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली थोड़ी ही है। हमीदा बानो ने शान से कहा, दुल्हन, तुम्हारा घर तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने आई हूँ। अल्लाह ने मुझे ख़जाना गैब से इतना दे दिया है कि मैं अलग घर लेकर ठाठ से अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी गुजार सकूं। हमीदा बेगम ने हाथ में पकड़ी थैलियां दिखाईं। हामिद भी बीवी के पीछे खड़ा था। जल्दी से आगे बढ़कर बोला, इनमें क्या है अम्मा? हमीदा बेगम बोली, इनमें अशरफियां हैं। जंगल में जाड़ा गर्मी बरसात आए थे, उन्होंने मुझे दी हैं। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अब तो दोनों मियाँ बीवी की काया ही पलट गई। सायरा ने झपट कर इसके हाथ से पोटली लेते हुए कहा, कैसी बातें करती हैं अम्मा? हमारे होते आप अलग क्यों रहेंगी? ये घर भी तो आपका है, हम भी आपके हैं। झूठे आंसू आंखों में भरकर बोली, आपकी कसम, जब से आप गई हैं घर में चूल्हा भी नहीं जला है। आपके बेटे ने तो पानी तक नहीं पिया। आपके पोते को तो आपकी हड़क में बुखार तक चढ़ाया है। हामिद आगे बढ़कर हाथ थामता हुआ बोला, अम्मा माफ़ कर दो, सुबह मुन्ने की मोहब्बत में परेशान होकर कुछ उल्टा सीधा बोल गया था। आपसे ज़्यादा बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कौन है? आपके कदमों के नीचे तो हमारी जन्नत है। हमीदा बानो खूब समझ रही थी कि ये जन्नत कहाँ से आई है, लेकिन अब इसकी बारी थी। बोली, नहीं बेटा, घर तो तुम्हें छोटा पड़ता है ना, मैं अपना अलग इंतज़ाम कर लूँगी। बस रात अपनी कोठरी में गुजारने आई हूँ। सायरा दुपट्टे के कोने से आंखें रगड़कर बोली, अम्मा, जो सज़ा चाहे दे दो, मगर हमें अपने साय से महरूम मत करो। हामिद बोला, अम्मा का बिस्तर जल्दी से बड़े कमरे में लगाओ। अम्मा कोठरी में नहीं रहेंगी,
इनके हाथ पांव धुलवाओ और खाना लाओ, अम्मा सुबह से भूखी होंगी। सायरा ने दौड़कर बड़े कमरे में अम्मा का बिस्तर लगाया, पानी लाकर इनके हाथ पांव धुलाए, दस्तरखान में सजाकर पुलाव जर्दा इनके सामने रखा। हमीदा बानो ने अशरफियों की एक थैली हामिद को थमाई और दो अपने संदूक में रखकर ताला लगा दिया। बेटा बहू तो ऐसे राम हुए कि कुछ कहने को ही नहीं। थैली भर अशरफियाँ मिल गईं और दो थैलियों का लालच वो जादू था कि जिसने सायरा की काया ही पलट दी। अब तो हर वक्त सास के आगे पीछे फिरती और इनकी खिदमत करती न थकती। अशरफियों की बात इसने अपनी बहन नादरा को भी बताई। नादरा यूं तो भली लड़की थी, लेकिन सास के जुल्म सितम से परेशान थी। ऊपर से अशरफियों का लालच। इसने सारा हाल अपने मियाँ को बताया और समझाया कि अगर हम भी सिर्फ एक दिन के लिए अम्मा को घर से निकाल दें तो इन्हें भी जाड़ा गर्मी बरसात अशरफियों से भरी थैलियाँ दे जाएंगे। जैसे हामिद के घर में हुन बरस रहा है, ऐसे ही हमारे भी दिन संवर जाएंगे। पैसे का लालच बुरा होता है। बात साबरा के बेटे की भी समझ में आ गई। अगली सुबह दोनों मियाँ बीवी ने साबरा से झगड़ा किया। साबरा की जुबान तो थे ही तेज मिर्च। इसने एक की चार सुनाई, खूब बुरा भला कहा। बहू बेटे ने साबरा को इस उम्मीद पर घर से निकाल दिया कि आने वाली शाम इनके लिए खुशबख्तियाँ लेकर आएगी। बकती झचकती बहू बेटे को गालियाँ कोसने देती। साबरा ने कई पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया और बेटे बहू के खिलाफ खूब जहर उगलते हुए आसरा चाहा। पड़ोसी साबरा की बिच्छू जैसी फितरत से खूब वाकिफ थे। सबने दो बोल हमदर्दी के बोलकर दरवाज़ा बंद कर लिया। साबरा ने इनकी भी तबीयत साफ कर दी। मजबूरन बुरा भला कहती साबरा ने भी आखिर इसी बरगद के पेड़ के नीचे पना ली जहाँ हमीदा बैठी थी। उधर जंगल में जाड़ा गर्मी बरसात आपस में उलझे हुए थे। इनकी बहस का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। हमीदा बानो ने तीनों की इतनी तारीफ की थी कि तीनों ही अपने आप को बेहतरीन समझने में मुसिर थे। आखिर जाड़ी ने कहा वो औरत थी तो अच्छी, मगर बड़ी चापलूस थी। हम तीनों को ही उल्लू बनाकर अशरफियाँ समेट के ले गई। हम चलो आज फिर निकलते हैं, किसी दूसरे इंसान से फैसला करवाते हैं। गर्मी और बरसात ने भी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। सबसे पहले जाड़ा बाहर निकला। दूर से बरगद के नीचे साबरा बैठी दिखाई दी। वो इसी की तरफ बढ़ा, करीब जाकर बोला, अम्मा सलाम, आप कैसी हैं? साबरा सर्दी से थर थर कांपते हुए बोली, दूर हट बुड्ढे, कौन है तू? जरा सिरक कर खड़ा हो। और अम्मा अम्मा क्या लगा रखी है? मैं तुझे अम्मा नजर आती हूँ? अपनी सफ़ेद दाढ़ी नहीं देखी? मेरा भी बाप लगता है। जाड़ा पीछे सरकता हुआ बोला, माफ़ करना बहन, मेरा नाम जाड़ा है। मैं ये मालूम करने आया हूँ कि सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है। साबरा तनक कर बोली, जान ना पहचान, बड़ी खाला सलाम, मैं क्यों होती तेरी बहन? बेबात रिश्ते जोड़ रहा है। जाड़ा होगा तो अपने घर का होगा, मुझे क्या लेना देना। और जहाँ तक सर्दी के मौसम का सवाल है, इससे तो बुरा कोई मौसम ही नहीं होता। सर्दी आई, हाथ पांव का दम निकला, मोटे मोटे कपड़े लाद कर वैसे ही उठना बैठना मुश्किल, इस पर भी कलेजा कांपता रहता है। ठंड से हाथ पांव सुन हो जाते हैं, ना उठा जाए ना कोई काम किया जाए। ऊपर से तरह तरह की बीमारियां, गठिया का दर्द पैरों से माजूर कर देता है। बच्चे बूढ़े जवान सब जुकाम बुखार खांसी नमूनिया में गिरफ्तार नजर आते हैं। ज़रा कुछ ठंडा गरम खा लिया तो भैया पड़ गए बीमार। छोटे छोटे दिन घड़ी की आन में गुजर जाते हैं। सारा काम जू का तू पड़ा है। शाम हो गई, रात को दो दो चार चार रजाइयाँ कंबल डालो, गर्मी ही नहीं आती। दांत बज बज कर जबड़ा दुखने लगता है। ना कहीं आने के ना कहीं जाने के, कहीं कोई खूबसूरती नहीं। टुंड मुंड दरख्त खड़े हैं, पौधों का पाला मार रहा है, महावटें बरस रही हैं तो और मुसीबत। सूरज नज़र ही नहीं आता, तन में कुछ जान आए। जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ तो और मुसीबत, हर तरफ जैसे सफ़ेद भूत लौट रहा है। तौबा तबाह, ऐसा मौसम का क्या कहूँ, मर मर के 3 महीने गुजरते हैं। साबरा ने जाड़े की वो हिजू की कि इसके 14 तबक रोशन हो गए। गुस्से से थर थर कांपने लगा। साबरा की तरफ मुंह करके जो फूंक मारी तो बर्फ के जर्रात सीधे फेफड़ों में उतर गए। साबरा को डबल नमूनिया ने जकड़ लिया। पसलियां चल रही थीं, खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था।
मगर ज़ुबान पर मुग़ल्लज़ात का तूफ़ान था कि इतने में गर्मी आ पहुंची। इसने करीब आकर कहा, अम्मा सलाम, आप कैसी हैं? साबरा तेवरी चढ़ाकर बोली, कौन है तू कलमुही? जवान जहान सिंगार किए बालों में फूल लगाए भरी दोपहर में जंगल में घूम रही है। गर्मी ने कहा, अम्मा खफा न हो, मैं गर्मी हूँ। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि गर्मी का मौसम कैसा होता है। साबरा भन्ना कर बोली, नसीब पीटी दूर हो मेरे पास से। तेरे पास आते ही बदन में आग पड़ गई। अभी तेरा भाई आया था पूछने के जाड़ा कैसा होता है। कमबख्त पाला मार गया मुझे। अब तू आई है कि गर्मी कैसी होती है। अल्लाह बचाए गर्मी के मौसम से। गर्मी से तो शैतान भी पनाह मांगता है। गर्मी आई नहीं कि होश व हवास जाते रहते हैं। किसी कल चैन नहीं। दिन में 10 दफ़ा ना हो मगर ठंड नहीं मिलती। पसीने की धारें बह रही हैं। गर्मी दाने निकल रहे हैं। न ढंग का पहना जाए न ढंग से खाया जाए। लुएं चल रही हैं। मकान भट्टी बने हुए हैं। ऊपर से तरह तरह की बीमारियां। किसी को लू लग गई तो किसी को बदहजमी हो गई। बच्चों के फोड़े फुंसियां निकल रहे हैं। मक्खियां भिन भिन कर रही हैं। मच्छर काट रहे हैं। खुजा खुजा के बदन सूजे जाते हैं। बगोलों और आंधियों ने तूफान मचा रखा है। हर चीज़ धूल मिट्टी में अट रही है। सुबह का खाना पकाया, शाम को सड़ गया। दूध रखा, लो भैया फट गया। चूल्हे के पास जी होला जाता है। जमीन तप रही है। आसमान कहर बरसा रहा है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब सूखे जा रहे हैं। हाथ पाँव में तो जान ही नहीं रहती। कोई काम नहीं किया जाता। पंखा झलते झलते हाथ जख्मी हुए जाते हैं। ना रात को नींद ना दिन को चैन। ऐसा जहन्नुमी मौसम है कि खुदा की पनाह। बड़ी आई पूछने के गर्मी कैसी होती है। शक्ल देखी है कभी आईने में? नास पीटी। गर्मी का पारा गुस्से से बढ़ता जा रहा था। साबरा ने भी बदजुबानी की हद कर दी तो गर्मी ने आंचल झटका। लू का तेज झोंका साबरा से ऐसा टकराया कि लू लग गई। नमूनिया ने तो वैसे ही जकड़ रखा था। ऊपर से लू का असर हुआ तो बुखार में जलने लगी। गर्मी तो गुस्से से जलती फटकती और साबरा ने तो इसकी 7 पुश्तों को नवाज के रख दिया। उधर इन सारे हालात से बेखबर बरसात अपनी बारी की मुंतजिर थी। इसने दूर से देखा कि गर्मी गुस्से में उड़ी चली जा रही है तो समझ गई कि बुढ़िया ने इसे नापसंद कर दिया है। अब तो मेरी जीत के लिए मैदान साफ है। वो इठलाती बल खाती स्याह बालों से बूंदे टपकाती साबरा के पास आई। अदब से झुककर सलाम किया। साबरा बीमारियों का पटारा बनी पड़ी थी। तकलीफ से बेहाल थी लेकिन फितरी बदमिजाजी और तलख कलामी से बाज नहीं आई। आए हाय, कौन है तू? परी है के भला? शाम पड़े जंगल में खुले बाल घूम रही है। किसी चुड़ैल या पिच्छल पैरी का साया हो जाएगा। घर में माँ बाप नहीं है तेरे? क्या अकेले आवारागर्दी के लिए छोड़ दिया? बरसात ने हंसकर कहा, अम्मा आप गलत समझी। मैं कोई लड़की नहीं बल्कि बारिश का मौसम हूँ। आज मेरी अपने बहन भाई जाड़ा और गर्मी से शर्त लगी थी कि देखें कि लोग किसको पसंद करते हैं। लगता है कि आपको मेरे भाई बहन पसंद नहीं आए तो यकीनन आप मुझे पसंद करती होंगी। बताइए कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। कीड़े पड़े तेरे बहन भाई में और कहर टूटे तुझ पर। बड़ी आई पूछने वाली कि बरसात कैसी होती है। अरे जैसे तेरे बहन भाई वैसी ही तू। बरसात का मौसम, अल्लाह तौबा, बरसे तो मुसीबत ना बरसे तो आफत। बारिशें हुई नहीं कि ज़िंदगी दुश्वार हो गई। हर तरफ कीचड़, हर तरफ गंदगी, जगह जगह पानी भर रहा है। मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कन खजूरे कन सिलाइयाँ निकल रहे हैं। गरीबों के घरों की छतें टपक रही हैं। सर छुपाने को जगह नहीं है। हर चीज़ गीली, हर जगह सेलन। सुबह रोटी पकाई, शाम को फबूंद लग गई। कपड़े सुखाने की अलग मुसीबत। सूरज की शक्ल नज़र नहीं आती। अलगनी पर पड़े पड़े कपड़े सड़ने लगते हैं। हर चीज़ से सेलन की बदबू आ रही है। नदी नाले चढ़े आ रहे हैं। बाढ़ें आ रही हैं। खेत खलियान बर्बाद हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है। लोग घर से बेघर हुए पड़े हैं। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अल्लाह बचाए। पानी बरस रहा है तो नाक में दम है। रुक जाए तो गर्मी और हब्स ऐसी के दिल उल्टा जाए। किसी कल सुकून नहीं है। न सोते चैन न उठते राहत। खाने को कुछ नहीं मिलता।
ہر چیز سڑ رہی ہے، ہر چیز گل رہی ہے، سبزی ترکاریوں میں کیڑے پڑے ہیں، کہاں تک گنواؤں؟ برسات کیا ہے، قہر ہے اللہ کا۔ صابرہ کی زبان تو کینچی کی طرح چلی جا رہی تھی، ادھر برسات کے ہاتھ سے صبر اور ضبط کا دامن چھوٹا جا رہا تھا۔ آخر حد ہو گئی تو اس نے غصے اور نفرت سے اپنا دامن جو چھٹکا تو پانی کی ایک تیز پھوار کے ساتھ طرح طرح کے کیڑے مکوڑے صابرہ کے بدن سے چمٹ گئے۔ جو رہی سہی کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ادھر صابرہ کے بہو بیٹے انتظار میں ٹہل رہے تھے کہ کب شام ہو اور اماں اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے گھر آئیں، لیکن جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو انہوں نے سوچا چل کر دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اماں اشرفیاں لے کے کہیں اور چلی جائیں۔ دونوں میاں بیوی برگد کے پیڑ کی طرف بڑھے تو دور سے صابرہ کے کراہنے اور گالیوں کوسنوں کی آوازیں آنے لگیں۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اماں تو بیماریوں کی پوٹ بنی پڑی ہیں، نمونیا اور لو کے اثر سے بے حال، کیڑوں کی کاٹی ہوئی، گیلے کپڑوں میں کانپتی ہاپتی، لیکن زبان چاقو کی دھار کی طرح چلی جا رہی تھی۔ بیٹا بہو کو دیکھا تو انہیں دنیا جہان کی بد دعائیں دے ڈالیں۔ بیٹا جیسے تیسے غلاظت میں لپٹی اماں کو لے کر گھر آیا، بہو نے نہلایا دھلایا، ڈاکٹر کو بلا کر دوا دلوائی، دلیا پکا کر کھلایا، بجائے اشرفیاں ملنے کے دوا دارو میں ڈھیروں پیسہ اٹھ گیا۔ نادرہ کو افسوس ہوا کہ دولت کے لالچ میں اس نے ڈبل مصیبت مول لے لی۔ سائرہ بھی سنگن لینے بہن کے پاس آئی تو سارا احوال معلوم ہوا، تب اسے اپنی ساس کی قدر ہوئی کہ واقعی حمیدہ بانو نیک، شریف اور با اخلاق خاتون ہے، اور اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ ساری ساسیں بری نہیں ہوتی۔ اس نے حمیدہ بانو سے اپنے پچھلے برتاؤ کے لیے معافی مانگی اور ہنسی خوشی ان کی زندگی گزرنے لگی۔